الرحمن الرحیم اللہم محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیے کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں اور ان کی سنت پہ عمل کرنے والے بنیں۔ تو الحمدللہ ہم نے لاسٹ دیکھے تھے کہ جنگ احد کے بعد کچھ قبیلے جو تھے آس پاس کے تھوڑے سے لوگ، ان لوگوں نے کیا کرنے لگے تھے، سر اٹھانے لگے تھے اور مسلمانوں پہ اٹیک کرنے لگے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ طرف سب فوجیں بھیج کے ان لوگوں سب کو وہاں پہ ختم کر دیے۔ پھر ہم نے دیکھے تھے کہ کچھ جو صحابی ہے، کچھ قبیلے آئے اور کچھ صحاباؤں کو لے کے گئے کہ ہمارے ساتھ دین سکھانے کے لیے بھیجو۔ تو اس میں سے سب سے پہلے اسی طرح سے دھوکے سے 10 صحابیوں کو قتل کر دیا گیا، پھر دوسری بار 40 صحابیوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم کی بات تھی، اور جتنے مدینہ کے لوگ تھے ان لوگ سب کے لیے بہت غم کی بات تھی۔ اور جب وہ دوسری بار جب اس طرح سے قتل ہوا تھا تو اس میں صرف ایک صحابی بچ گئے، اور وہ جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ وہی دوسرے قبیلے کے لوگوں کو دیکھے، تو انہوں نے کیا کیا، ان 2 شخص کا قتل کر دیا، اور ان کو کیا لگ رہا تھا کہ میں نے اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے لی۔ اور وہ صحابی یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جو 2 شخص تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امان میں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولے کہ اب ہم کیا کریں گے، دید دیں گے۔ تو دید دینے کی یہ ہونے کے بعد کیا کیا گیا، معاوضے کی رقم یہ کرنے لگے، کلیکٹ کرنے لگے۔ اور جو بنو نذیر قبیلہ ہے ادھر بھی جا کے کیا کرنے لگے، ان کو بھی بولا گیا کہ آپ لوگ کو بھی کیا کرنا پڑے گا، اس میں یہ دینا پڑے گا۔ تو بنو نذیر نے کیا بولے کہ اچھی بات ہے ہم دیں گے، اب پیسے لینے آ جاؤ کر کے بولے، لیکن ان لوگ کے دل میں کیا تھا، چور تھا، اور ان لوگ نے کیا کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنے کی سازش کی۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے آ گئے، اور بنی نذیر کو بھی بول دیا گیا کہ اب تم کو کیا کرنا پڑے گا، 10 دن میں یہ جگہ خالی کرنی پڑے گی۔ تو اور جب بنو نذیر تک یہ خبر پہنچی تو اس کو عبداللہ بن ابی نے کیا دلاسا دیا کہ تم مت جاؤ، تم اپنی جگہ پہ رہو، میں تمہاری مدد کرنے آؤں گا، بنو قریظہ ہے وہ بھی آپ کی مدد کرنے آئیں گے، اور افغان کے قبیلے والے وہ بھی سب آئیں گے، تو اپنی جگہ پہ جمے رہو۔ لیکن جب مسلمان لوگ اٹیک کرنے پہنچے تو یہ سارے لوگ نے کیا کیے، اپنے بات سے پھر گئے۔ تو آخر میں بنو قریظہ کا بھی کیا حال ہوا کہ ان لوگ نے بھی اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا اجازت دی کہ تم اپنے ہتھیار کو چھوڑ کے تمہارے اونٹوں پہ تم کتنا سامان لے کے جا سکتے ہو اتنا لے کے چلے جاؤ۔ تو اس طرح سے بنو قریظہ بھی کیا ہو گیا، مدینہ سے باہر ہو گیا۔ اب یہ سب ہوتے ہوتے جنگ بدر کا بھی وقت آ گیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر کے آئے تھے، وعدہ کرے تھے، اور جو قریش لوگ نے وعدہ کیے تھے کہ اگلی بار اب ہم کا دیکھیں گے، بدر میں دیکھیں گے۔ تو اس طرح سے مسلمان لوگ نے کیا کیے، اس جگہ جانے کی تیاری کر لی۔ اب مسلمان لوگ تو وہاں پہ جا کے جب بدر میں پہنچ گئے، لیکن جو ابو سفیان جو اپنی لشکر کو لے کے چلا تھا تو اس نے ایک تھوڑی سی جگہ پہ مرے زرہا کر کی جگہ پہ گئے، اپنے کیمپ ڈالنے کے بعد انہوں نے کیا بولے، کیونکہ ان لوگ کے دل نہیں تھے جنگ لڑنے کے لیے، ان لوگ کے دل میں مسلمانوں کی دہشت بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ان لوگ نے کیا بولے کہ وہ سال لڑائی کے لیے اچھا ہوتا ہے جب جہاں پہ نا کھانا پینے کی آرام ہو، مویشی چر رہے ہو، مویشیوں کے تھن میں دودھ ہو، مطلب حالات اچھے ہو گئے، اس ٹائم پہ لڑائی کرنا اچھا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت تو قحط سالی پڑی ہے ہمارے مکے میں، تو کھانے پینے کی بھی ہم کو دقت ہے، ہم مویشیوں کو بھی کھانے پینے کی دقت ہے، تو اس بار ہے نا جنگ کرنا مناسب نہیں ہے، تو میں تو واپس مکے کی طرف پلٹ رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس طرح سے بیان کیے، تو ان کے ساتھ جتنے اور بھی لڑنے کے لیے جو آنے والے تھے ان لوگ نے، سب لوگ نے بھی کیا کرے،
बोले हाँ सही बात है करके सारे के सारे लोग वापस बदर चले गए, बदर से मक्का चले गए। अब ये जब बात हुई तो क्या हुआ, मुसलमानों की धाक और पूरे अरब में बैठ गई। मुसलमान लोग वहां पे 8 दिन तक इंतजार करते रहे और इंतजार करने के बाद वापिस आ गए। अब क्या हुआ, अब ये जो कुरैश लोग वापिस आ गए और ये जो यहूदी जो थे उनको निकाला गया था, बनु नदीर के कबीले को निकाला गया था, बनु कैनुका को निकाला गया था। तो ये जो यहूदी जो थे शम्स और खैबर की तरफ में जाके बस गए थे। लेकिन अब इन लोग है ना चोट खाए हुए थे, इन लोग है ना मौके की तलाश में थे कि कुछ किसी तरह से भी मुसलमानों को हम लोग तकलीफ पहुंचाए, उन लोग को नुकसान पहुंचाए। जब वो देख रहे थे कि कुरैश और मुसलमान लड़ रहे तो उन लोग को हमेशा कुरैश की साइड रहते थे, खुश होते थे कि चलो कुरैश के साथ लड़ेंगे तो मुसलमान लोग खत्म हो जाएंगे, उन लोग यही आस पे रखे थे। लेकिन अब इन लोगों ने देखे कि उहुद की लड़ाई में कैसे हुई, होने के बाद भी उसका कुछ पूरा ये नहीं हुआ, और अब जो बदर की लड़ाई होने वाली थी वो तो हुई नहीं। और बाकी के जितने भी कबीलों ने, छोटे मोटे कबीले लोग ने जो मुसलमानों के खिलाफ जो भी किए वो भी क्या हुआ, वो भी उसका कोई भी ये नहीं निकला, अच्छा नहीं निकला। नतीजा सब मुसलमानों के हक में हुआ। तो अब इन लोग ने क्या किए, इन लोग ने एक बहुत बड़ी साजिश रची। इन लोग बोले कि देखो अगर हम अकेले अकेले लड़ेंगे तो हम लोग मुसलमानों का सामना नहीं कर पाते, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको है ना सबको साथ में लेके मिलके लड़ना चाहिए। अब ये यहूदी जो थे ना, उन लोग में हम पढ़ते आए हैं कुरान से कि उन लोग के पास दिमाग बहुत था, उन लोग के पास हथियार भी था, और उन लोग जंग के लड़ने वाले भी थे। कुछ कबीले तो जंगी थे और कुछ ज्यादा बुजदिल थे, तो उन लोग क्या करते थे, और दूसरों की मदद को लड़ाते थे और खुद है ना उसकी पूरी फंडिंग करते थे। तो इसी नियत से ये ना क्या, ये 20 बड़े बड़े जो यहूदियों के ये थे सरदार थे, उन लोग कहाँ पर गए, उन लोग कुरैश के पास गए। और कुरैश के पास जाके ना बनु नदीर के सरदार और वो जो बनु कुरैजा के कैनुका के सरदार, ये सारे लोग मिल के वहां पे गए, यहूदी लोग मिल के कुरैश के पास गए। और कुरैश को जाके बोले कि तुम लोग क्या करो, मुसलमानों पे अटैक करो और हम भी इस बार साथ में रहेंगे, हम भी तुम्हारा साथ देंगे करके। अब यहाँ पे जो कुरैश लोग थे, अब कुरैश लोग ने बदर में लड़ाई नहीं किए थे, तो उस वक्त क्या हुआ था, सारे अरब वाले लोग है ना सब बातें बना रहे थे कुरैश लोग के ऊपर कि इन लोग ने क्या किए, जंगा वादा करके आए नहीं, इन लोग ने वादा खिलाफी कर लिए, इन लोग बुजदिल हो गए, कायर हो गए करके इस तरह की बात फैली हुई थी। तो कुरैश लोग को एक मौका मिल गया फिर से लड़ाई करने का, तो इन लोग पहले बात तैयार हो गए कि यहूदियों की बात पहले मान लिया उन लोग के, हाँ हाँ हम लड़ेंगे इन लोग के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ आपके साथ मिलके लड़ेंगे। फिर ये जो यहूदी जो थे, आसपास के जो छोटे मोटे कबीले थे जो मुसलमानों के खिलाफ थे, और मक्के के पास जो गफ्तान जो एक अच्छा बहुत बड़ा कबीला था जो मुसलमानों के खिलाफ था, उन लोग के पास सारे उनके लीडर्स जाके मिले। और सारे लीडर्स लोग को मिलके सारे जितने आसपास अरब के जितने भी छोटे मोटे कबीले थे, जिन लोग के दिल में मुसलमानों के खिलाफ थे, उन लोग को सारों को जमा किए, क्योंकि उन लोग मीन्स छोटे छोटे कबीले थे, तो उन लोग की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन लोग अकेले मिलके जाके मुसलमानों पे अटैक करे। और उन लोग ने देखे थे कि इससे पहले जो जिन लोग ने अटैक किए उन लोग का हाल क्या हुआ है करके, मुसलमानों ने उन लोग को अचानक से आके अटैक कर दिए और उन लोग को ही हारना पड़ा था। तो ये सारे लोगों को हिम्मत नहीं थी अटैक करने की। अब इन लोग को यहूदियों का और कुरैश का सपोर्ट मिला, तो ये सारे के सारे लोग तैयार हो गए। अब यहाँ पे पूरे लोग तैयार हो गए, कुरैश, यहूदी लोग और जितने भी छोटे मोटे कबीले थे, बनु सुलैम के, गस्तान के, बनी मुर्रा, फजाजा, अशा, ऐसे और जितने भी जो छोटे मोटे कबीले थे, ये सारे लोग पूरे तैयार हो गए कि अब हम क्या करेंगे, सारे लोग मिलके हम लोग मुसलमानों पे अटैक कर देंगे करके। अब ये बात नबी वसल्लम को पता चल रही है, क्योंकि नबी वसल्लम को तो सब बात पता चल ही जाती थी, तो ये सारी बात नबी वसल्लम को पता चल रही है कि सारे के सारे लोग कब किसने किससे हाथ मिलाया, कौन किसके पास कब पहुंचा, ये सारी बात नबी वसल्लम को पता चल रही है। और ये सारे लोग मिलके, इन लोग की इतनी तादाद थी कि इन लोग की तादाद थी 10,000 के करीब। ये सारे लोग अगर मिलके जब अटैक करेंगे तो इन लोग की तादाद 10,000 के करीब। और जबकि मुसलमान जो थे मदीने में, मुसलमान के सैनिक, आदमी लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े सबको मिलाएंगे तो भी मुसलमान कितने थे, 3,000 के करीब थे।
تو اگر یہ جو ان لوگ اٹیک کرنا چاہتے تھے، اگر ان لوگ آ جائیں گے مدینے کے اندر گھس جاتے ان لوگ اٹیک کرنے والے، تو کیا ہوتا تھا؟ تو ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ 10,000 کی سینا کے سامنے 3,000، جو کہ 3,000 میں پورے کے پورے فائٹرز بھی نہیں ہیں، اس میں بچے، عورتیں، بوڑھے سب ہیں، تو اتنا خراب حال تھا۔ اب اسی جنگ کو جس نام سے ہم لوگ جانے جاتے ہیں، جنگ احزاب کے بارے میں، جنگ خندق بھی ہم اس کو یہ کرتے ہیں، اس کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کو ہم لوگ جنگ احزاب کے بارے میں بھی جانا جاتا ہے۔ احزاب کا مطلب ہوتا ہے پارٹیز، جو ان لوگوں نے پوری مل کے، جب سارے لوگ نے مل کے جو پارٹیز بنائے تھے نا، الائنس پارٹی، اس کو بولا جاتا ہے احزاب۔ تو یہ سارے پارٹیز لوگ نے مل کے کس کے خلاف ان لوگ ہوئے تھے؟ مسلمانوں کے خلاف۔ جو مسلمان اس وقت نئی ریاست تھی، تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن اس کے خلاف، ایک چھوٹے سے اس کے خلاف، یہ سارے بڑے پاورز جو تھے وہ ایک چھوٹی سی نئی ریاست کے خلاف سارے کے سارے لوگ مل کے آ گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پوری برابر سے خبر تھی کہ کون کب ملا ہے، سارے سب لوگ کے پلانس کیا ہے، یہ ساری بات معلوم تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے پہلے بھی دیکھے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، کہ وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو، اپنے یہ اسپائس کو لگا کے رکھا کرتے تھے کہ کون کدھر جا رہا ہے، کس کی یہ کیا کیا پلاننگز چل رہی ہے، ان لوگ کیا قدم اٹھا رہے ہیں، یہ سب بات کی خبر ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، غافل ہو کے کبھی نہیں رہتے تھے۔ تو یہ ساری خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی کہ 10,000 کی سینا، اتنی بڑے لوگ کیا کرنے والے ہیں، مدینہ پہ اٹیک کرنے والے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جتنے اپنے صحابہ تھے ان لوگ کی سب کی میٹنگ کرے، ان کی سب لوگ نے میٹنگ کرے اور ان کو بتا دیے کیا ہے نا، بہت ایک بڑے سے لوگ جو ہے، بڑی سی آرمی جو ہے آ رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، تو اب ہم کیا ایکشن لیں گے، ہمارا کیا ایکشن پلان ہوگا؟ تو سارے لوگ نے اپنی اپنی تجویز دی کہ ہم اس طرح سے کریں گے، اس طرح سے کریں گے، لیکن سب کو ایک جو شخص تھے سلمان الفارسی، ان کا آئیڈیا سب کو پسند آیا۔ سلمان الفارسی جو تھے وہ فارس کے تھے، اور ان کا آئیڈیا کیا تھا کہ انہوں نے کیا بولے کہ ہے نا، فارس میں سب وہ ٹائم پہ ایران کو کہا جاتا تھا، ایران کا جو وقت ہے اس کو فارس بولا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کیا بولے، اور ایران اور یہ رومنس، اس کی ہمیشہ جنگ ہوتی تھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ۔ ایران اور رومنس یہ دونوں سپر پاور تھے، تو ان لوگ کی ہمیشہ جنگ ہوا کرتی تھی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیا بولے کہ ہمارے جو جگہ پہ ہے، اگر اس طرح سے اٹیک ہم پہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہے نا ایک بہت بڑی خندق، بہت بڑی سی خندق، بہت بڑا سا گڈھا ایسا بنا دیتے ہیں، پورے ہمارے آس پاس میں کیا کرتے ہیں، بہت بڑا سا کھڈا کھود دیتے، خندق کھود دیتے ہیں، اور ہمارے جو فورٹس ہوتے ہیں، ہمارے جو قلعے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے کھانا پینا سب کا انتظام ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو کیا ہوتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اندر والے کو کوئی باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور دشمن کیا نہیں کر سکتے، ہم پہ اٹیک نہیں کر سکتے۔ تو یہ پلان ہے نا سب کو بہت بہت پسند آیا۔ اب یہاں پہ میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بتاتی چلوں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جیسے کہ ان کے نام سے، وہ کہاں کے تھے؟ ایران کے تھے، ایران کے تھے، اور یہ ہے نا، یہ بہت ہی اچھے بڑے گھر میں ان کا یہ ہوا تھا۔ اور ان کے جو ابا تھے وہ کیا تھے؟ وہ ہے نا جیسے کہ پریسٹ ہوتے ہیں، وہ تھے آگ کی پوجا کرنے والے جو تھے، وہ اس کے سب سے بڑے پریسٹ تھے، ان کے راجا کے محل کے سب سے بڑے پریسٹ تھے۔ تو ان کے پاس پیسہ ویسا سب کچھ تھا، اس ٹائم پہ ایران سپر پاور ہے، تو جیسے کہ پریسٹ لوگ کی زیادہ عزت ہوتی ہے پجاریوں کی، تو اس طرح سے ان کی جو ابا تھے ان کی بہت زیادہ عزت تھی۔ جو بادشاہ بھی تھا وہ کیا کرتا تھا، ان سے صلاح لیتا تھا، کیونکہ یہ دین کو جاننے والے ہیں، اس لیے کر کے ان کی بہت زیادہ عزت تھی۔ تو اب یہ ان کے جو بیٹے تھے، تو ان کے ابا کے یہ بہت چہیتے بیٹے تھے، وہ ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ میں رکھتے، وہ ان کو کہیں باہر جانے نہیں دیتے، اور ان کو بہت پیار سے اور اس سے وہ رکھتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا اس طرح، ایک دن ہے نا ان کو کچھ باہر جانے کا کام آیا، وہ اپنے ابا کے ساتھ ایسا باہر جا رہے تھے، تو وہاں پر اس وقت کیا پہ تھا، جو عیسائی دھرم تھا اس کے کچھ چرچ تھے، ان کے جو جو جہاں پہ رہتے تھے نا وہاں پہ کچھ چرچ تھے۔ تو ایک بار کیا ہوا، ان کا چرچ کے پاس سے گزر ہوا، تو جب وہ چرچ کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے سنے، جو وہاں کا جو پادری تھا وہ ہے نا حمد و ثنا کر رہا تھا، وہ حمد و ثنا کر رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا تھا، تو یہ بات ہے نا ان کو بہت اچھی لگی، تو یہ ہے نا ان کو بہت بہت دل کو چھو گئی، اور پھر کیا کرنے لگے، وہ بعد میں واپس سے وہ پادری سے پھر ان کے ابا سے چھپتے چھپتے ملنے لگے۔
تو उस वक़्त वो जो पादरी था वो सही दीन पे था, क्रिश्चियन था, लेकिन उस वक़्त का जो सही दीन था वो क्रिश्चियन था, क्रिश्चियनिटी था। तो वो सही दीन पे था, अभी के जैसा मतलब ये नहीं था, वो पहले सही सही उसका जो ये था सही था ईमान। तो उसने वहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला की तारुफ़ कराया कि हम सिर्फ़ एक अल्लाह को मानते हैं, ये सारी बातों को तारुफ़ किया। तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु क्या किया करते थे, उनसे मिला करते थे और उनके पास जो है वो दीन का इल्म लिया करते थे। फिर उस जो था पादरी बोला कि मेरे पास अभी कितने दिनों के बाद, कितने महीनों के बाद, उसने क्या बोला कि मेरे पास है ना इतना ही इल्म है, और अगर तुमको और जानना है तो तुम क्या कर रहे चले जाओ, शम्स की तरफ चले जाओ, सीरिया की तरफ चले जाओ। तो सलमान फारसी मतलब देखो वो उनकी पोजीशन इतनी अच्छी थी कि उनके जो अब्बा थे उनके पास पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ थी, उनके पास सब कुछ था। लेकिन जब इनको हक पता चल गया और ये हक की तलाश में इन्होंने क्या की, ये सारी चीज़ को छोड़ दिए और अपने अब्बा से भाग के कहाँ पर चले गए? शम्स में चले गए, सीरिया में चले गए। सीरिया में भी ऐसे ही एक पादरी के पास गए और उसने भी अपना जो इल्म था सब कुछ दिया। फिर उसने बाद में क्या बताया कि देखो अभी जो हमारा दीन है उस पे है ना, उस पे सही दीन पे चलने वाले हैं ना बहुत कम लोग रह गए। बाकी लोग ने सब लोग ने क्या किए हैं, दीन में गुल्लू कर दिए हैं और उन लोग अलग अलग इस पे उन लोग भटक गए, लेकिन हमारे दीन पे चलने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। फिर उसने बताया कि उसने और एक भी इन्फॉर्मेशन क्या गया था कि उसके सहीफों से उसको पता चला है कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं, और वो कहाँ पर होंगे कि जहाँ पे बहुत खजूरें उगती है ना, वहां पर वो मिलेंगे। तो तुम क्या करो, उस नबी की तलाश में तुम जहाँ पे बहुत खजूरें उगती है, खजूरें कहाँ उगती है, मदीना, मदीना की जगह पे वहां पे चले जाओ करके उनको बता के, वो भी मतलब ये पादरी के पास कब तक रहते थे, जब तक है ना उन लोग का आखिरी वक्त नहीं आ गया था। तो उसका भी आखिरी वक्त आ गया तो उसने बता दिया क्या मेरे पास जितना इल्म था मैंने दे दिया, अभी तुम क्या करो, जो आखिरी नबी आने वाले हैं, सच्चे नबी आने वाले हैं, तो तुम अब है ना वहां चले जाओ तो तुमको सही की तलाश तुमको हो जाएगी कर। फिर उसने ना कुछ निशानी भी बताए। उसने सबसे पहले क्या निशानी बताया था कि जहाँ खजूरें बहुत होते हैं वो वहाँ पर आने वाले हैं। फिर उसने और एक एक क्या निशानी बताया था कि वो क्या लेंगे, वो है ना हदिया लेंगे और सदका है ना बाँट देंगे। सदका नहीं लेंगे, जो रसूल है वो क्या करेंगे, हदिया को कबूल करेंगे और सदके को कबूल नहीं करेंगे। और उनको है ना उनके पीठ के पीछे नबूवत का मोहर रहेगा करके। तो ये सारी निशानी उसने सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को बता दी। अब सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से क्या करने लगे, मदीना की तरफ जाने लगे, काफ़िले के साथ जा रहे थे मदीना। तो जब वो काफ़िले के साथ जा रहे थे मदीना, तो उस काफ़िले पे क्या किए, किसी लोग ने अटैक कर दिए। जो लुटेरे होते थे, उन लोग ने अटैक कर दिए और सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या कर दिए, बंदी बना दिया। और बंदी बना के उनको क्या लेके गए, मदीने की ही मार्केट में लेके जाके उनको बेच दिए। अब मदीने का एक यहूदी जो था, उसने क्या किया, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को खरीद लिया। इस तरह से सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फारस से कहाँ पे पहुँच गए, मदीना पहुँच गए। अब ये मदीना पहुँच के क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनको बताया गया था कि आखिरी नबी यहाँ पे आने वाले हैं करके, उनको बताई गई थी ये बात, तो वो उनका इंतज़ार करते बैठे थे, अपना काम किया करते थे और उनका इंतज़ार करते थे। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना की तरफ आए, तब ये बातें उनको ऐसे-ऐसे तो पता चल गई थी। मदीना में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही इस्लाम दाखिल हो चुका था और ये सारी बातें पता थी। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का इंतज़ार करते थे। और जब नबी सल्लम आ गए मदीना में, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने मालिक के पास गए और बोले कि मुझे आज का जो काम किया उसकी कुछ उजरत दे दो, कुछ मुझे ये दे दो करके। तो उस मालिक ने क्या किया, कुछ खजूरें दे दिया। तो वो खजूर लेके सलमान फारसी रज़ी अल्लाह नबी वसल्लम के पास गए और उन्होंने क्या किया, नबी वसल्लम को वो खजूरें पेश की और बोले ये हम मेरी तरफ से सदका है करके। और वहाँ पे खड़े होके देखने लगे कि नबी वसल्लम क्या करते। तो नबी वसल्लम ने वो ले लिए और जितने आस-पास ज़रूरतमंद बैठे थे सहाबा, उन लोग में क्या किए, तस्कीन कर दिए और उन्होंने उसमें से एक भी खजूर नहीं खाया। तो उनकी जो पहली बात थी, वो उन्होंने देख ली, सही किया, जो नबी होंगे वो सदके का माल नहीं खाते। फिर उन्होंने दूसरे दिन भी काम किए और अपने मालिक से बोले कि मुझे आज की कुछ उजरत दे दो, और वो उजरत लेके गए और नबी वसल्लम के पास गए, वो खजूरें लेके, और उन्होंने बोले कि ये है ना मेरी तरफ से हदिया है। तो नबी वसल्लम ने वो खजूरें को ले लिए
उसमें से एक खजूर खा लिए और बाकी अपने सहाबाओं में बाँट दिए। तो उन्होंने देख लिए कि इन्होंने क्या किए, हदिया कबूल कर लिए और लेकिन सदका नहीं कबूल किया। अब उनको तीसरी निशानी देखना था, तो तीसरी निशानी के लिए क्या कर रहे थे वो, नबी वसल्लम के पीछे की तरफ फिरते जा रहे थे कि उनको वो मोहर दिख जाए, उनको मोहर दिख जाए। तो अब ये बात नबी वसल्लम को पता थी कि वो क्या चाहते, क्या देखना चाहते, ये सब उनको पता था। तो नबी वसल्लम ने क्या किया, अपनी कमीज को थोड़ा-सा ऊपर गले की तरफ से ऊपर कर दिए। तो उससे क्या हो गया, उनका जो पीछे का गला था थोड़ा नीचे झुक गया और वो मोहर सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को नज़र आ गई। तो जैसे ही वो मोहर नज़र आ गई तो सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु नबी वसल्लम के पास आए और उनका हाथ पकड़े, चूमे और वहीं पर इस्लाम कबूल कर लिए। अब इस्लाम कबूल करने के बाद अब वो क्या चाहते थे कि वो नबी वसल्लम के पास ही रहे करके। लेकिन अब वो क्या है, वो गुलाम है। तो नबी वसल्लम ने बोले, अच्छा जाओ जाके पूछो तुम्हारे मालिक से कि तुम्हारी रिहाई की कीमत क्या है, तुम्हें आज़ाद करने की कीमत क्या है करके। तो वो गए वहाँ पे और अपने मालिक को पूछा। तो उनके मालिक ने क्या बोले कि मुझे तुम है ना ऐसे 100 खजूर के झाड़ लगा देना जिसमें फल आए और 100 और ये झाड़ रहेंगे, तब जब उसमें फल आने लग जाएँगे तब मैं तुमको क्या कर दूँगा, रिहा कर दूँगा। तो अब ये बात सुन के उनका बहुत दिल ये हो गया कि बोले अभी 100 खजूर के दरख्त लगाऊं और जिसमें फल आने लगे तो समझो वो 5-6 साल तक का वो काम होएगा। जब अभी लगाऊंगा वो झाड़ बड़ा होगा फिर उसमें फल आएंगे तो ये 5-6 साल तक के तो मैं क्या नहीं हो सकता, आजाद नहीं हो सकता हूँ। तो ये बात आके उन्होंने बोल दी कि मेरी तो कीमत उन लोग ऐसे बोल रहे हैं तो ऐसी ऐसी बात है। तो नबी सल्लम ने बोले कोई बात नहीं, जब ये करो, खोदो पूरे झाड़ लगाने के लिए 100 और खोदो और जब खजूरें डालने का वक्त होगा ना तब मुझे बुलाना। तो जब खजूरें पेरने का वक्त आया तो नबी सल्लम को बुलाया गया और नबी सल्लम ने अपने हाथों से वो पूरी 100 खजूरें डाली और माशाल्लाह उसकी बरकत से क्या हुआ, 1 साल में ही वो झाड़ बड़ा भी हो गया और उसमें से क्या आने लग गए, उसमें से खजूर भी आने लग गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर क्या हो गए, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु आज़ाद हो गए। तो जब वो आज़ाद होने के बाद वो ज़्यादातर वक़्त अपना नबी सल्लम के पास ही गुज़ारा करते थे, दीन सीखने के लिए, दीन की बातें सीखने के लिए। और इन सहाबी के बारे में और एक-एक बात ये है कि नबी सल्लम ने इनके लिए कहा कि ये हम में से है, मतलब अहले बैत में से है, तो इनको है ना हम अहले बैत में भी शामिल समझते हैं। अभी ये जो आइडिया था जो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ने दिए थे, ये कहाँ का आइडिया था? ईरान का आइडिया था। पर और लेकिन जो अरब के लोग थे, इन लोग के लिए क्या है थी ये बात, ये नई बात थी। ऐसा कभी अरब में ऐसा नहीं होता था, लोग सिर्फ़ लड़ाई करते थे, ऐसा खंदक-वंदक नहीं खोदा करते थे। तो सारे लोगों को ये पसंद आई बात और सारे लोग को नबी वसल्लम ने हुक्म दे दिए कि खंदक खोदो और खुद नबी वसल्लम खुद शामिल हो गए, मतलब सारे को हुक्म देके खुद बैठ गए ऐसा नहीं था। खुद नबी वसल्लम अपने हाथों से वो गड्ढा खोदने में नबी वसल्लम भी मदद किया करते थे। लेकिन अब यहाँ पे हालात ऐसे खराब थे मदीने में कि मदीने में क्या हुआ था कि वो जिस वक़्त ये सब हुआ था जब सारे अहज़ाब के लोग आए थे अटैक करने के लिए, तो उस वक़्त मदीने में ना इतना खाना-पीना आसानी से नहीं मिल रहा था। मतलब खजूर अभी निकलने का टाइम था, पूरा सीज़न कैसा हो गया था कि अभी पूरा जो खत्म हो गया, अभी नई खजूरें आएँगी ऐसा था। तो एंड टाइम का सीज़न था तो इतना वहाँ पे वो टाइम पे लोग ये सब जमा करके भी नहीं रखते थे, तो इतना ज़्यादा खजूरें भी नहीं थी, खाने-पीने की कमी थी। और अब सारे को हुक्म दे दिया गया कि सब के सब लोग कहाँ जाएँगे? ये खंदक खोदने में जाएँगे। तो अब खेत में भी कोई है नहीं। तो इस वक़्त जो था ये मुसलमानों के लिए क्या था, बहुत ही मुश्किल वक़्त था। अब इन लोग के बोले खाने का इतना ये है नहीं और इन लोग को क्या करना है, इतना इम्पोर्टेंट काम करना है, प्लस सामने क्या है दुश्मन आने वाले हैं करके। तो सारे मुसलमान लोग क्या करने लग गए, खंदक खोदने में लग गए। और लेकिन इन लोग कितने ज्यादातर मुसलमान लोग कैसे रहते थे, भूखे रहते थे, भूख से इन लोग का हाल बहुत बुरा था। तो इन लोग एटलीस्ट सीधा खड़े रहे करके मुसलमान लोग ने क्या किए थे, अपने पेट पे पत्थर बांध लिए थे। तो मतलब इन लोग कितनी भूख और कितनी इसमें उन लोग ने ये सारे काम किए। और एक साहबा ने क्या किया, जाके ना नबी वसल्लम को बताया कि देखो हम लोग भूख से इतने परेशान हैं
اور لیکن یہ خندق بھی ہمیں کھودنا ہے، تو ہم نے کیا کیے ہے، پیٹ پہ ایک پتھر باندھ دیے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کے بتایا کہ میں نے کیا کیا ہوں، تم لوگ سارے لوگ نے ایک باندھے ہے، تو میں نے کیا باندھا ہوں، میں نے 2 پتھر باندھ دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ جو بھی جیسا عوام کا حال ہوتا ہے، اس سے دگنا کس کا حال ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہوتا ہے، رسول کے رسول کا حال ہوتا ہے۔ اب یہ سارے لوگ خندق کھود ہی رہے ہیں، اور اس میں پھر کیا ہوا، کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چھوٹے موٹے معجزے بھی بتائے۔ اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے بولے کہ اب ہے نا ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بھوکے ہیں، اتنی بھوک کی حالت میں یہ سب کام بھی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا بولے اپنی بیوی کو کہ اب ہے نا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اور ان لوگ کے پاس بھی کچھ زیادہ کھانے پینے کا سامان ہے نہیں۔ تو انہوں نے بولے کہ ہمارے پاس جو ایک چھوٹی سی بکری ہے، بکری کا بچہ، اس کو ہی کیا کرو، اس کو ہی ذبح کر دو۔ اس کو ہم کیا کریں گے، ذبح کر کے میں کیا کرتا ہوں، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دیتا ہوں، تاکہ وہ آئے اور ہمارے گھر پہ تھوڑا پیٹ بھر کے ایک دن کھانا کھا لے، وہ کچھ اپنے صحاباؤں کے ساتھ آ کے تھوڑا کھانا کھا کے چلے جائے۔ تو ان کی بیوی بھی تھی، بولے اچھی بات ہے، آپ ایسے ہی کرو۔ تو اس نے کیا کری، وہ ایک بکری کو ذبح کر دیا، اور اس کے پاس ایک 2-3 کلو آٹا کچھ تھا، اس کی بولی میں روٹیاں بنا دوں گی، اور وہ سالن بنا کے انہوں نے بولے کہ آپ نا کیا کرنا، صرف ہے نا ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا اور کیا دعوت دینا کہ آپ کے کچھ لوگوں کو لے کے، قریبی لوگوں کو لے کے دعوت لینے آ جاؤ، جا کے آہستہ سے دعوت دینا کر کے، اس طرح سے ان کی بیوی نے بول کے بھیجا۔ تو جب جابر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، اس کو اعلانیہ کر دیے کہ آج کیا ہے، جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں دعوت ہے۔ اب جابر رضی اللہ عنہ تو بہت ڈر گئے، بہت پریشان ہو گئے۔ اب ان کو کیا لگا تھا، ایک 5-6 لوگ آئیں گے کھانے میں، کیونکہ کھانا تو کم ہے، کچھ کھانا اتنا بہت زیادہ ہے نہیں۔ اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے ہے، پورے کے پورے لوگوں کو دعوت دے دیے، تو ان کو بہت پریشانی ہو گئی۔ اب سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور انہوں نے کیا بولے کہ تم سب سے پہلے سرو مت کرنا، مجھے بلانا۔ اور انہوں نے خود گئے، اور انہوں نے کچھ سالن میں اپنا یہ کرے، ہاتھ پھرائے، اور ان کی جو روٹی کا آٹا تھا اس پہ بھی ہے نا، اس کے اوپر بھی پڑھ کے ایک کپڑا ڈال دیے۔ بولے اب کیا کرو، اب تم ہے نا سب کو سرو کرتے جاؤ۔ تو پھر اس کے بعد جو جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے وہ ہے نا سب کو سالن نکال کے دیتے جا رہے تھے، اور اس میں روٹیاں بناتے جا رہے تھے، اور سارے لوگ جو تھے باہر، جو مسلمان لوگ تھے، وہ 10-10 کر کے اندر آ کے کھانا کھاتے جا رہے تھے، اور ماشاءاللہ سارے کے سارے لوگ کھا لیے، اور لیکن پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوا ماشاءاللہ۔ وہ جو مطلب جو اتنا سا کھانا تھا جس میں 5-6 لوگ کھا سکتے تھے، اسی میں پورے کے سارے لوگ کھا لیے، یہاں تک کہ جابر رضی اللہ عنہ ان کی فیملی نے بھی پورے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور الحمدللہ کھانا کم نہیں ہوا۔ اس طرح سے اور ایک یہ بھی بات ہوئی تھی کہ ایک عورت جو تھی، اس نے کیا کری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے نا، کچھ اس کے پاس تھوڑی سی ہاتھ مٹھی بھر کے کھجورے تھی، اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھجورے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، اس کو نیچے کپڑے پہ ڈالے، اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالے، اور سارے صحابہ کو حکم دے دیے کہ سارے کے سارے لوگ آؤ، اور ایک ایک مٹھی اس میں سے کھجور اٹھا کے لے کے جاؤ۔ اور سارے جتنے بھی صحابہ لوگ تھے، جو کام کرنے والے تھے، وہ سب لوگ آئے، اور ایک ایک مٹھی بھر بھر کے کھجورے لے کے جا رہے ہیں، لیکن وہ کھجورے جو صرف ایک مٹھی بھر کی کھجور تھی، وہ ہے نا اس طرح سے اس میں اتنی برکت ہو گئی کہ سارے لوگوں کو پوری وہ آ گئی۔ پھر ایک بار کس کا کیا ہوا کہ کچھ صحابہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بولے کہ ہم لوگ جب خندق کھود رہے، اس میں ایک بیچ میں ایک بڑا سا پتھر آ گیا ہے، اور وہ ہم لوگ اس کو توڑنے کی کوشش کرے تو ہمارے ہتھیار ٹوٹ رہے ہیں، لیکن وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہ گئے، نیچے اترے، اور کیا کیا، اللہ اکبر بول کے کیا کیا، انہوں نے اس پتھر کو مارے، اس پتھر کو کدال مارے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد کیا بولے کہ اللہ اکبر، مجھے ہے نا شمس کی چابیاں دی گئی ہے، اور میں وہاں کے لال محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے دوسری بار واپس سے اس پتھر کو مارے، پھر انہوں نے بولے اللہ اکبر، مجھے ہے نا پرشیا کا یہ دیا گیا ہے، مجھے پرشیا دیا گیا ہے، ایران دیا گیا ہے، میں وہاں کے سفید محلوں کو، مدین کے سفید محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری بار واپس اس پتھر کو مارے، اور انہوں نے بولے کہ اللہ اکبر، مجھے ہے نا یمن کی چابیاں دی گئی ہے، اور مجھے یہاں سے سنا کا گیٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد وہ پتھر ٹوٹ گیا۔ تو یہ اس حدیث میں مطلب یہ دیکھو، ابھی ہم کو سب کچھ پتا ہے، تو ہمارے لیے سارا یقین کرنا آسان لگ رہا ہے، لیکن اس وقت صحاباؤں کے بارے میں سوچو کہ صحاباؤں کا حال کیا ہے،
फर्स्ट उन लोगों के पास खाने की कमी है। सेकंड उन लोग के सामने क्या है, इतनी बड़ी उन लोग के सामने आज़माइश है कि इतनी बड़ी एक आर्मी आने वाली है कि जितने उन लोग हैं उससे तिगनी जमात ज़्यादा क्या आने वाली है, एक आर्मी उन पे अटैक करने आने वाली है। और इस हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उनको खबर सुना रहे हैं कि मुझे शम्स दिया जा रहा है, मुझे पर्शिया दिया जा रहा है, मुझे यमन देना जा रहा है। लेकिन सहाबाओं का ईमान इतना ये था, पक्का था कि उन सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे यकीन कर देते। ये सारी बात सुन के सहाबा जितने थे उन लोग खुश हो गए और उन लोग में ईमान और बढ़ गया और उन लोग को ये काम करने का और जज्बा आ गया। और फिर हमने आगे देखे कि हजरत उमर के जमाने में ही क्या हो गया था, पर्शिया जो ईरान और ये सब क्या हो गया था, फातेह हो गए थे और मुसलमान के कब्जे ये सारी जगहों पर हो गए। फिर अब क्या हुआ, अब है ना पूरे दिन हो गए और जो सारी जो पार्टीज थी वो सारे लोग आ गए मदीना पे अटैक करने। और जब मदीना की तरफ उन लोग अटैक करने के लिए आए तो ये सारे के सारे जो लोग आए थे उन लोग ने ये जो खंदक खुदी हुई देखी, ये देख के इन लोग सारे के सारे लोग हैरान हो गए कि ये क्या नई चीज आ गई, ये क्या मुसलमान लोग ने नया काम कर दिए करके। अब इन लोग ने देख लिए कि इन लोग ने इतना बड़ा गड्ढा खोदे कि हम लोग है ना आसानी से कहीं मदीना के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। फिर भी उन लोग क्या कर रहे थे, इन लोग आस-पास घूम के ये देख रहे थे कि कहीं से भी एक छोटी-सी जगह हम लोग को मिल जाए, कहीं पे से भी ये गड्ढा छोटा खुदा हुआ रहे तो हमको एक वहाँ से मौका मिल जाए, तो हम क्या करेंगे वहाँ से अटैक कर लेंगे, उस जगह से हमारी पूरी आर्मी को लेके हम लोग वहाँ से घुस जाएँगे। और ये बात उन लोग इस तरह से कर रहे थे। अब यहाँ पे मुसलमान लोग जो है उन लोग ने देखे कि उन लोग के सामने क्या आ गए, दुश्मन आ गए और इतनी बड़ी जमात उन लोग के सामने खड़ी हुई है। और जब उन लोग ने ये सारी चीजें देखे जो ईमान वाले, तो उन लोग ने क्या कर वो बोले कि वलम्मा वराल मोमिनुल अहज़ाब कालू हाज़ा मा वादना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुल इल्ला ईमानिहिम। तो ये सारे लोग जो मुसलमान लोग थे, ईमान वाले थे, तो उन लोग ने जब ये देखे अहज़ाब को, सामने इतनी बड़ी ग्रुप्स को, तो उन लोग ने कहने लगे कि यही है जो जिसका वादा हमको अल्लाह और उसके रसूल ने करा करा था और अल्लाह और रसूल का वादा सच है। और ये सारी चीज़ें देख के क्या हो गई, हमारे ईमान में बढ़त हो गई, हमारे ईमान बढ़ गए। और यही जब मुनाफिक लोग ने देखे, तो उन लोग ने क्या बोलने लगे कि इसके बारे में सूरह अहज़ाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत डाले कि वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुम मा वअदल्ला मा वअदल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। और इन लोग ने क्या बोले, जो मुनाफिक थे उन लोग ने बोले कि अल्लाह और उसके वादा कैसा है, कुछ नहीं बल्कि एक धोखा है। मतलब इन लोग ने जब देखे इतनी बड़ी पार्टी, तो उन लोगों को क्या लगा कि अब तो हम लोग सब गए समझो, क्योंकि हमारे सामने इतनी बड़ी पार्टी आई है लड़ने के लिए, हम लोग तो गए। और मुसलमान लोग क्या बोल रहे हैं कि अल्लाह का वादा सच्चा है, रसूल का वादा सच्चा है और अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने बोले कि हमें फतेह होगी, तो हमको ज़रूर फतेह होगी करके इसका मुसलमानों को यकीन था। तो ये बात हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे साथ कैसे भी हालात आए, तो हमको हमारा यकीन अल्लाह पे क्या करना चाहिए, पक्का रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमको अच्छे ही हालात मिलेंगे। ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते ही है, तो कभी भी जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई उतार आ जाए, तो हमारे ज़बान से कोई भी कुफ़्र कलमात नहीं निकलना चाहिए। कभी भी मतलब जिस बात को हमको पता ही नहीं है क्या होने वाला है, अगर आज सामने हमको गलत लग रहा है, लेकिन अल्लाह का प्लान सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है, तो हमको सिर्फ़ यही बोलना चाहिए कि अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जो चाहेगा वो अच्छा ही करेगा। ऐसी तरह से अल्फ़ाज़ हमको बोलना चाहिए। अब ये इतनी बड़ी सेना सामने खड़ी है। अब इन लोग में से कुछ लोग कुरैश के लोग ने देखे कि हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई कच्चा रास्ता, छोटा रास्ता हमको जैसा मिल जाए, हम लोग क्या करेंगे वहां से घुसने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं, अपनी तीर के जरिए अगर जो भी कोशिश कर रहा है घुसने की अंदर, उस खंदक के अंदर से मदीने की तरफ आने की, तो उन लोग क्या कर रहे हैं, उस पे तीर चलाते जा रहे हैं। फिर भी इतने में जो थे 3 लोग जो थे कुरैश के, एक अम्र बिन अब्दु वदूद और इकरमा बिन अबू जहल और दिरार बिन अल खत्ताब। तो ये 3 लोग ने क्या करे, फिर भी बहादुरी से क्या करे, एक जगह से खंदक में ये करके पार करके मदीने की तरफ आने की कोशिश करे। तो ये इस तरह से मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली बिन तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु जल्दी से आए और उन लोग का मुकाबला की। तो उसमें से जो अम्र बिन वदूद थे उसको कत्ल कर दी।
तो जब अम्र बिन वदूद कत्ल हो गया तो इकरा बिन अबू जहल और जो दूसरा उनके साथी थे वो क्या करे, उन लोग भाग के वापस चले गए अपने खेमे की तरफ, भाग के चले गए। तो अब क्या हुआ, अब कोई है ना ऐसे लड़ाई हो ही नहीं रही है, कुरैश लोग बैठे कि किस तरह हम लोग अंदर जाए, और मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं कि जितने कोई भी उस तरफ से आने की कोशिश कर रहा है तो उसको तीर चला रहे हैं, उसके ऊपर तीर चला रहे हैं, तो यही वहां पे चल रहा है। अब यहाँ पे जो कुरैश लोग थे और जितने भी लोग आए थे उन लोग ने क्या किए, सिर्फ घेराव करके बैठ गए। अब ये हाथ पे हाथ रख के इन लोग को भी बैठना क्या कर रहा है, भारी पड़ रहा है, क्योंकि इतना इन लोग सफर करके आए कि हम लोग क्या करेंगे, इन लोग को खत्म कर देंगे मुसलमान लोग को। लेकिन अब यहाँ पे देखे तो कुछ अटैक करने मिल ही नहीं रहा है, और सिर्फ यही काम हो रहा है कि हम लोग को सिर्फ बैठना है और इंतजार करना है। अटैक करने जा रहे तो वहां पे से मुसलमान लोग तीर चला के हमारे लोगों को मार रहे। अब ये इस सिर्फ तीर की फाइट में इसमें ही है ना खबर आती है कि इसमें छह जो थे मुस्लिम शहीद हो गए थे, और 10 कुफार जो थे वो कत्ल कर दिए गए थे। और मतलब सोचो ना, हम लोग खुद सोच सकते हैं कि टेंशन कितना है कि अगर हमारी सिटीज के बाहर पूरे दुश्मन बैठे हुए हैं तो किस तरह से हाल रहेगा। तो नबी सल्लम और हजरत उमर और बाकी सहाबा लोग सब इतने टेंशन में रहते थे, उस तरफ देखते हुए, उस तरफ के कोई दुश्मन कुछ नई चाल नहीं चले, ये नहीं चले, उस बारे में जायजा लेते हुए इतने टेंशन में रहते थे कि इस वक्त क्या हुआ, नबी सल्लम इसमें से हदीसों में से आता है कि कुछ नबी सल्लम की नमाजें ये हो गई, नबी सल्लम इस वक्त क्या किए, असर और मगरिब की साथ में मिला के नमाजें पढ़ ली। ये जितने दिन ये यहाँ पर थे उस दिन के दरमियान कितनी नमाजें नबी सल्लम ने क्या किए, मतलब कसर करके साथ में पढ़ लिया करते थे। कभी एक बार है ना हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु आए, और उन लोग है ना ये जो कुरैश थे उनको है ना ये दे रहे थे, बददुआएं दे रहे थे कि उनके वजह से क्या हुआ, असर का सूरज डूब गया लेकिन मेरी असर की नमाज नहीं हुई। तो नबी वसल्लम ने बोले कि मैंने भी अब तक की वो नमाज अदा नहीं किया हूँ असर की। फिर नबी वसल्लम ने वजू करके नमाज अदा की, और साथ में हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने भी असर की फिर नमाज पढ़ के फिर मगरिब की नमाज पढ़े। तो इस वक्त नबी वसल्लम की कितनी नमाजें उन्होंने इस तरह से अदा किए थे। अब इस तरह से चल ही रहा था कि अब क्या होगा, उसी दौरान जब ये तीर चलाने की चला उस दौरान क्या हुआ, साद बिन मुआज जो थे उनको है ना एक तीर कुरैश लोगों का लग गया था। और वो कुरैश का तीर उनको कहाँ लग गया था, हाथ पे कहाँ पे लग गया था, जो एकदम मेन नस रहती है ना वहां पे लग गया था, और उनको वहां पे से ना बहुत खून बह रहा था। फिर उन्होंने पट्टी वट्टी कर दिए, और उसी वक्त उन्होंने अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ मांगी। और उन्होंने क्या दुआ मांगे कि ए अल्लाह सुब्हान तआला, तुम जानते हो कि मुझे उन लोगों से जिन्होंने अपने अपने रसूल को अपनी घर से निकाला उनके साथ लड़ना मुझे कितना पसंद है। तो अगर ये लड़ाई और आगे बढ़ने वाली है, और कुरैश अगर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई लड़ाई करने वाले हैं, तो मुझे क्या रखना, मुझे जिंदा रखना। और अगर नहीं तो क्या करना, इस जख्म के से ही मुझे क्या दे देना, शहादत दे देना। और फिर उन्होंने और एक भी ये दुआ करे थे कि जो बनु कुरैजा जो है उनके मामले में जब तक मुझे कुछ बराबर से खबर नहीं हो जाए तब तक के मुझे मौत नहीं देनी। अब ये सब इस तरह से हालात रखे हुए हैं, तो इतने में क्या करे, जो कुरैश लोग थे उन्होंने अपनी एक चाल चले। उन लोग में जो बनु नदीर का जो ये था हेड, हुएब बिन अख्तब, उसने क्या किया, पीछे से कुरैश लोग जो तो बनु कुरैजा वाले थे उन लोग के पास गया, उन लोग के पास ही खुद गया, और जाके वहां के जो सरदार था काब बिन असद, उनके पास जाके मिला। अब काब बिन असद को उसने जाके बोला कि देखो हम भी यहूदी तुम भी यहूदी, तो तुम क्यों अरब लोग की साइड दे रहे हो, तुम क्या करो हमारा साइड दो। और यहाँ पे क्या है, इन लोग ने पहले से सारे यहूदियों ने अहद करके रखे थे ना मुसलमानों के साथ, तो स्टार्टिंग में ये दोनों ने तो अहद तोड़ दिए। लेकिन जो आखिरी जो थे बनु कुरैजा, उन लोग अपनी अहद पे मौजूद थे, तो नबी वसल्लम ने उनको कुछ भी नहीं बोले। तो लेकिन अब यहाँ पे ये जो था हुए बिन अब तक जाके वहाँ काब बिन असद को क्या बोल रहे कि तुम भी क्या कर दो, अहद तोड़ दो, तुम भी हमारे साथ आ जाओ, सामने देखो इतने सारे लोग आए लड़ने के लिए, तो तुम भी हमारा साथ दो करके बहुत उनको उकसाने लगा। अजान के बाद कंटिन्यू करती हूँ। अब यहाँ अब यहाँ पे जो हुए बिन अख्तब बनु नदीर के जो चीफ, वो कहाँ पर गए, काब बिन असद के पास गए।
और काब बिन असद को बोलने लगे कि तुम भी यहूदी है, हम भी यहूदी है, और हम सारे लोग मिल के अभी आए हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो अब तुम क्या करो, तुम हमारा साथ दो। तो पहले काब बिन असद ने बहुत मना किए कि नहीं, तुम लोग गलत ये लेकर आए, मुझे अहद तोड़ने बोल रहे हो, ये गलत है, ये सब बहुत बोले। लेकिन जो हुएब बिन अख्तब थे वो उनके पीछे ही रहे, और आखिर में उनको क्या करे, मनवा के ही रहे कि तुम अब क्या करो, अपना अहद तोड़ दो और हमारा साथ दो। तो आखिर में उनकी बात में आके काब बिन असद ने क्या करे, अपना अहद तोड़ दिए। अब ये जो अहद तोड़ने का क्या होने वाला था कि अब मुसलमान के जो देखो सारे जो लोग हैं, लड़ने वाले हैं, सैनिक है, वो सारे के सारे लोग मक्का की हिफाजत में लगे हुए, एकदम फ्रंट में खड़े हुए हैं, मक्के की हिफाजत में खंदक खोद के। और यहाँ पर जो पीछे है ना, वहां पे घर में क्या कौन रह गई है, एक जो इलाके पे ना नबी साहब ने क्या किए थे, औरतों को बच्चों को वहां पे जमा कर दिए थे। और उन्होंने क्या किए थे, एक दो जो सहाबी जो बुजुर्ग थे, और उसमें एक है ना सहाबी जो शायर थे जिनका नाम था हसन बिन साबित। तो ये बहुत शायराने मिजाज के थे, तो ये लड़ाई वड़ाई नहीं किया करते थे, तो इनको उन औरतों के साथ छोड़ दिए थे हिफाजत के लिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो यहूदी लोग ने क्या किया, अपना अहद तोड़ दिए। और अब ये इसमें से ना एक यहूदी क्या करने लगा, जहाँ पे औरतों और बच्चों को रखा गया था वो उस जगह पे आके देख रहा है कि कोई आदमी लोग है क्या नहीं, कि सिर्फ औरतें हैं, बच्चे हैं। अब ये जो वहां पे वो आदमी आया था, उसको सफिया रजी अल्लाह अन्हु जो थे, जो नबी वसल्लम की फूफी लगते हैं, उन्होंने देख लिए। और ये कैसे थे, ये बहुत बहादुर औरत थी, तो इन्होंने ये निगरानी किया करते थे, चौकस रहते थे, तो इन्होंने देख लिए कि एक यहूदी आया है जो क्या कर रहा है, देख के ये खबर पहुंचाएगा कि यहाँ पे सिर्फ ना औरतें और बच्चे हैं, आदमी लोग नहीं है। तो उन्होंने जल्दी जल्दी हसन बिन ताबिर रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और बोले कि देखो ये यहूदी यहाँ पे आया है हम पे नजर करने के लिए, नजर रखने के लिए, एक काम करो जाके इसको कत्ल कर दो। तो जो हसन जो रजी अल्लाह अन्हु थे, वो क्या, वो शायर थे ना, तो ये सब लड़ाई का काम नहीं करते थे। तो वो बोले क्या आप कैसी बात कर रहे हैं, अगर मुझ में ये सारे का हुनर मौजूद होते तो मैं यहाँ पे पीछे थोड़ी रहता था, मैं भी चला गया होता था जंग में, जंग लड़ने के लिए। तो ये बात सुन के सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा को बहुत गुस्सा आया कि मतलब अभी तो ऐसा मौका है कि अभी हमको कुछ करो या मरो, उस हाल में ये आके बोल रहे हैं इनको करने के लिए, और ये चुपचाप बोल रहे कि मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा खुद गए और एक लकड़ी लिए, और लकड़ी लेके पीछे से जाके उस यहूदी को मारे, और वो गिर गया, और उसको 3-4 बार और मार दिए। तो आखिर में क्या हो गया, वो यहूदी मर गया। अब वो यहूदी मरने के बाद फिर वापिस से सफिया रजी अल्लाह अन्हु आके बोले कि है ना क्या करो, अभी तुम है ना उसका सर काट के है ना जो यहूदियों का जो जगह है वहां पे जाके फेंक दो, तो उससे उन लोगों को ये खबर मिल जाएगी, ये मैसेज मिल जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ औरतें और बच्चे नहीं है, यहाँ पे कुछ आदमी लोग भी है हमारी हिफाजत के लिए। तो उस पे भी वो नहीं मान रहे थे, तो किसी तरह उन्होंने क्या करे, उनको बहुत मनवा के बहुत करने के बाद ये काम करे। अब ये जो हसन रजी अल्लाह अन्हु जो थे, वो कौन थे, वो शायर थे नबी वसल्लम के इसमें। तो उनको ये सब ज्यादा ना लड़ना वड़ना पसंद नहीं था, तो इसलिए वो सब नहीं करते थे। लेकिन नबी वसल्लम फिर भी है ना इनकी बहुत है ना तारीफ किया करते थे। और नबी वसल्लम बोलते थे कि तुम्हारे जो है ना शेर जो है ना, वो दुश्मनों को तीर से भी ज्यादा चुभते हैं, जो तुम्हारे जो अशार होते हैं, जो तुम मुसलमानों के लिए और दुश्मनों के खिलाफ बोलते हो, वो तुम्हारे अशहार क्या करते हैं, तुम दुश्मनों को तीर से भी ज्यादा जख्म देते हैं करके। अब ये यहाँ पे, अब ये बात है ना यहाँ पे नबी वसल्लम को भी पता चल रही है कि ये जो बनु कुरैजा वाले हैं, उन लोग अपनी वादा खिलाफी करने वाले हैं, और उन लोग भी मुसलमानों पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं करके। तो नबी वसल्लम क्या करते हैं, अपने 4 सहाबियों को, साद बिन मुआद, साद बिन उबादा, अब्दुल्ला बिन रवाहा और फवाद बिन जुबैर, इन 4 सहाबा को है ना भेजते, बोलते कि जाओ तुम यहूदियों के पास जाके है ना ये देखता रहो कि ये मेरे को जो खबर आ रही है, ये सच है कि नहीं, कि सच में बनु कुरैदा क्या करने वाले हैं, हमारा अहद तोड़ने वाले हैं क्या, ये जाके खबर लेकर आओ। और फिर नबी वसल्लम बोलते कि अगर ये खबर सच्ची है तो तुम क्या करना, आके मुझको मेरे कान में ये खबर की बात, खबर का जवाब देना। और अगर ये खबर झूठी है कि नहीं, हमने गलत अफवाह सुना हूं कि इन लोग ऐसा करने वाले, तब क्या करना, तुम सरेआम मेरे को ये जवाब आके दे देना। और अगर सच्ची है तो तुम क्या करना, सिर्फ मुझको नजदीक से कान में आके जवाब देना। मतलब देखो, अगर गलत खबर है, यहाँ पे देखो नबी वसल्लम की कितनी दूरंदेशी थी कि एक तो पहले से कैसे है, मुसलमान लोग पैनिक सिचुएशन में है, और सामने इतनी बड़ी फौज खड़ी है, उन लोग वहीं पर मदीना का दिफा करते हुए खड़े हैं,
और अगर इन लोग को ये खबर मिल जाए कि उनके जो घर की बीवी और बच्चे हैं, वो पीछे से यहूदी लोग अटैक करने का इरादे पे रखते हैं, तो कितना और पैनिक हो जाएँगे मुसलमान लोग। तो इसलिए नबी वसल्लम ने बोले कि ये जो अगर सच्ची खबर रहेगी तो मुझे खुद सिर्फ मेरे को आके जवाब देना। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जब सहाबा लोग उस तरफ गए यहूदियों की तरफ, तो उन लोग के रंग-ढंग और बात से समझ में आ गया कि इन लोग क्या करने वाले हैं, इन लोग दगाबाजी करने पे उतर आए हैं करके। ये फिर नबी वसल्लम को आके ये खबर दे दी गई। तो नबी वसल्लम ने फिर अब क्या किए, नबी वसल्लम ने और इसके बारे में कुरान में मतलब है ना क्या हुआ, कुरान में भी कुछ आयतें आई है कि ये जो थे मुसलमानों को क्या कर दिया गया था, बहुत बड़ा इम्तिहान लिया गया था। कितना बड़ा, ये क्या क्या इम्तिहान इम्तिहान था, ईमान का इम्तिहान था। इतना बड़ा, देखो सामने इतनी बड़ी आर्मी है जो इन लोग से 3 गुना ज्यादा है। अब ये इसी को हम लोग उन लोग दफा करना इन लोग को मुश्किल लग रहा है। प्लस अब क्या हो गया है, ये जो उनके जो खुद के बीवी बच्चे हैं, उन लोग की भी हिफाज़त अभी इन लोग को देखना है, क्योंकि जो पीछे से यहूदी थे, उन लोग भी अटैक करने पे तुले हुए हैं। तो यहाँ पे जो मुसलमान हैं, फिर भी उन लोग के पूरे ईमान लगा हुआ है, यकीन है। और लेकिन जो ये मुनाफिक लोग हैं, तो उन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं कि हमारी हालत ऐसी इतनी खराब है, और उसमें नबी वसल्लम कैसी बातें कर रहे हैं कि मुझे किस्रा और कैसर की चाबियाँ दी गई है, और ऐसी सब बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ पे हाल हो गया था। अब यहाँ पे नबी वसल्लम क्या करने लगे, दुआएँ करने लगे। कि तो अभी मतलब सिर्फ़ अल्लाह के ऊपर उन सारे मुसलमानों को भरोसा था, और उन लोग क्या करने लगे, दुआएँ करने लगे। और जो एक्शन प्लान था, तो उसके एक्शन प्लान के हिसाब से नबी वसल्लम ने क्या किए, कुछ थोड़े से सहाबाओं को कहाँ पर भेज दिए, औरतों के खेमे की तरफ भेज दिए कि जाओ तुम लोग क्या करो, औरतों का सपोर्ट करना करके। मतलब अगर उन लोग वहाँ पे से अगर औरतों पे अटैक कर दिए, तो तुम लोग जाके दिफा करना। और सेकंड फिर क्या करने लगे कि किस तरह से ये जो अटैक इन लोग है, इसको हम लोग ये कर सकते करके सोच रहे थे। अब इसी सोचने में और दुआएं करने में क्या हुआ, नबी वसल्लम के पास एक है ना गफ्तान का एक आदमी आया। कप्तान का आदमी आया और उसने क्या बोला, उसका नाम था नुएम, और उसने क्या बोला कि अच्छा, इसके पहले क्या हो गया, अभी नबी वसल्लम क्या बोल रहे, सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, है ना, जो गफ्तान जो और के कबीला है जो उन लोग के साथ खड़ा है, कुरैश लोग के साथ, मैं क्या करता हूँ, उन लोग के साथ सुलह कर लेता हूँ। उन लोग को सुलह भेजता हूँ कि तुम लोग क्या करो, कुरैश लोग का और यहूदियों का साइड मत दो, तुम लोग मुसलमानों के साइड आ जाओ। और इसके बदले में मैं क्या करूंगा, जो मदीना में से जो अनाज है, उसका एक हिस्सा मैं तुम लोग को दूंगा। ये ख़्याल नबी वसल्लम के दिल में आया मदीना वालों को बचाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, अपने सहाबाओं को बुलाए, और साद बिन उबादा और साद बिन मुआद, ये सारे लोगों को बुलाए जो मदीना वाले थे, और उनको बोले कि देखो मेरा ऐसा ख़्याल है कि मैं क्या करता हूँ, गफ्तान के लोगों को ये संदेश भेजता हूँ, ये कि हम लोग क्या करेंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ, इसके बदले में हम क्या करेंगे, मदीना की जो फसल है उसमें से इतना इतना हिस्सा तुम लोग को दे देंगे। तो जो सारे जो मदीना के जो सरदार थे, साद बिन मुआद और साद बिन उबादा, उन्होंने बोले कि देखो या रसूलल्लाह, अगर ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, तो आपको जो हुक्म दिया गया है वो कीजिए। और अगर ये आप चाहते हैं, ये आपकी तरकील है कि आप मदीना को वो किस तरह से बचाने के लिए इस तरह से तरकील कर रहे हैं, तो आप है ना ऐसा मत करो। जब हम कुफ्र पे थे तब तो उन लोग हम लोग से एक खजूर का टुकड़ा नहीं लेके जा सके। आज हम लोग ईमान पे है, तो हम लोग कैसे उनको हमारे बचाने के एवज में हमको उन लोग को हमारा ये अनाज दे दे और हमारा खजूर दे दे। हम लोग जरूर लड़ेंगे और अल्लाह हमारा साथ देगा, आप है ना ये हमारे लिए इतनी फिक्र मत करो करके इन लोगों ने बहुत नबी वसल्लम को दिलासा दे दी। तो नबी वसल्लम उनकी बात सुन के बहुत खुश हुए और बोले कि ये जो था तदबीर, ये मैं क्या कर रहा था, ये मदीना वालों को बचाने के लिए मेरी तदबीर थी, अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं। तो फिर ये क्या हो गया, ये कर दिया गया कि नहीं, इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे कर। अब फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक नुएम करके जो था, वो गफ्तान का आदमी था, वो आया नबी वसल्लम के पास चुपके से मिलने के लिए, और उसने बोला, नबी वसल्लम के पास आया, सलाम किया, और उसने बोला नबी वसल्लम को कि है ना, मैं है ना ईमान ला लिया हूँ, लेकिन ये मेरे कबीले के लोग जानते नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, बोलो। मैं जितना हो सकेंगे, जहाँ तक कि मेरे से हो सकेगा, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो नबी सल्लम बोले कि तुम है ना, ये जो जंग होती है, इसमें क्या होते है, इसमें चालें चली जाती है, तो तुम किसी चाल से कुछ ऐसा करके अगर ये लड़ाई नहीं को रुका सकते हो, तो तुम वो रुकाने की कोशिश करो।
तो इसने बोला अच्छी बात है, मैं अपने तरीके से जहाँ तक हो सकता हूँ, मैं वही लड़ाई को रुकाने की कोशिश करता हूँ करके। अब ये जो था ये आदमी नुएम वो है ना, यहूदियों को भी जानता था, कुरैश लोग को भी जानता था और ये कफ्तान के कबीलों के और दूसरे-दूसरे सरदारों को भी जानता था। तो मतलब इसकी अच्छी खासी पहुँच थी। तो ये सबसे पहले कहाँ पर गया, ये गया है ना इसके पास गया, कुरैश लोग के पास गया और कुरैश लोग के पास गया और कुरैश लोग को बोला कि देखो तुम लोग ये जो लड़ाई करने की नियत से आए हो, तो ये है ना, ये तुम लोग ने अच्छा काम नहीं किए। ये जो यहूदियों की बात सुन के तुमने उन लोग लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ आ गए हो, तो ये तुमने अच्छा काम नहीं किए। क्योंकि यहूदियों से तो हमको तुम लोग को पता ही है कि यहूदी कैसे होते हैं, अपनी बात से फिर जाते। उन लोग के खुद के कबीले जो थे, उनके आगे बनु नदीर और बनु कैनुका को जब निकाला गया, जब मुसलमान लोग ने निकाले, तब तब जाके इन लोग तब उस टाइम पे मदद करने नहीं आए एक-दूसरे को। तो अब ये तुम्हारी क्या मदद करेंगे करके इन लोग के दिल में उसने क्या कर दिया, ये बात ये डाल के फूट डाल के चले गए। और फिर वहां पे जाके है ना यहूदियों के पास बोले कि तुमने क्या किए, तुमने इन लोग की बात सुन के है ना अच्छा नहीं किए। और अगर देखो कभी कुरैश लोग को ऐसा लगा कि हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते, हम लोग जीत नहीं सकते, तो इन लोग तो पलट के चले जाएंगे और पीछे मदीने में कौन बच जाओगे, तुम बच जाओगे और पूरे सब मुसलमान किस पे टूट पड़ेंगे, तुम पे टूट पड़ोगे। तो तुमने है ना इन लोग की बात सुन के अच्छा नहीं किया। तुम लोग तो पहले ही अभी से पहले ही देखे थे कि दूसरी बार इन लोग ने बदर का वादा करके भी इन लोग ने क्या किए, इन लोग ने आए नहीं थे लड़ने के लिए, तो इन लोग पे तुमने भरोसा करके अच्छा नहीं की करके इस तरह से दोनों के खिलाफ बातें करने लगे। और फिर उसने ना यहूदियों को बोला कि तुम है ना, जब तक के है ना, जब तक के कुरैश लोग कुछ अपने आदमी तुम्हारे पास नहीं भेज दे, बतौर इसके अमानत के कि तुम्हारे पास मतलब कुरैश के आदमी तुम्हारे पास है, जब तक कि तुम क्या नहीं करना, अटैक नहीं करना। और यहाँ पे कुरैश लोग को क्या बोला कि यहूदी लोग है ना बहुत पछता रहे कि उन्होंने अहद तोड़ दिए और है ना पीछे से है ना इन लोग की मुसलमानों से बातचीत चालू है। तो इन लोग है ना अपनी वापस से दोस्ती का नजराना के इसमें क्या करने वाले हैं, कुरैश के कुछ लोगों को दोस्ती के खातिर मतलब दोस्ती का तोहफा में कुरैश के कुछ लोगों को देने वाले। तो उन लोग तुमसे बोलेंगे कि हम तुम्हारे कुछ साथियों को हमारे हवाले कर दो, तुम मत करना। उन लोग क्या करेंगे, ये साथियों को लेके जाके मुसलमानों के हवाले कर देंगे। तो इस तरह से दोनों जगह पे उन्होंने क्या किया, अलग अलग बातें करके उन लोग के दिलों में ये डाल दी, दरार डाल दी। और बाकी के जो दूसरे कबीले थे वहां पे भी जाके सब ऐसी ही बात करे कि कबीले अगर कुरैश चले जाएंगे, यहूदी लोग नहीं लड़ेंगे, तो तुम लोग तो क्या छोटे सा कबीला है, मुसलमान लोग तो तुम लोग को ऐसे ही ये कर देंगे। तो जब तक उन लोग पहल नहीं करेंगे तो लड़ाई में तुम लोग भी पहल नहीं करना। तो इस तरह से सारी बात वहां पे उन्होंने सेट करके रख दी। अब इनकी बातों में आके क्या हुआ, शनिचर की रात को कुरैश और गफ्तान के लोग ने क्या किया, यहूदियों को मैसेज भेजे कि अब जुम्मा की रात को के शनिचर हम लोग क्या करेंगे, सैटरडे को अभी सुबह में क्या करेंगे, तो तैयार हो जाओ, हम लोग लड़ाई करेंगे करके। सैटरडे को हम लोग सारे लोग मिलके अटैक कर देंगे करके। तो जो उस लोग ने रिप्लाई भेजे कि सबका दिन है, सैटरडे का दिन है, तो इस दिन तो हम लोग लड़ाई नहीं करते, तो हम लोग सैटरडे को लड़ाई नहीं करेंगे। हम लोग तो तुम क्या करो, कुरैश के कुछ है ना लोगों को, बड़े-बड़े थोड़े 1 2 4 सरदारों को हमारे हवाले कर दो, ताकि हमको भरोसा रहे कि तुम क्या करोगे, तुम ज़रूर से लड़ाई करोगे, तुम मैदान छोड़ के भागोगे नहीं। अब जब ये कुरैश लोग ने ये बात सुनी कि इन लोग कुछ आदमियों को मंगा रहे हैं, तो इन लोग को भी लगा कि नुएम जो बात बोल के गया है, वो सही बोल के गया। ये हमारे आदमियों को मंगाएँगे और ये हमारे आदमियों को मुसलमानों को दे के मुसलमानों के साथ दोस्ती कर लेंगे और हमारे खिलाफ लड़ाई करेंगे। तो इस तरह से इन लोग के दिलों में क्या हो गया, इन लोग के दिल में वसवसे आ गए। क्या इन लोग ये खुद जो पार्टीज़ थे, वो खुद एक-दूसरे पे अब इन लोग भरोसा नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से वहाँ के अहज़ाब में हालत जंग की इस तरह की हो गई। अब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट हफ्ते क्या करेंगे, इसके जो आगे का है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते देखेंगे। तो मैं दुआ पढ़ लेती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।